Okay, so we were discussing the multi-dimensional array in the last class, and basically two-dimensional array. Multi-dimensional array. Basically, in the multi-dimensional array, our focus was on two-dimensional array. Okay. हम basically we were making a program for two-dimensional array. We will trying to understand how to enter the values in a two-dimensional array. Okay, and how to print the values. Basically the same thing. So two-dimensional array we were discussing. We were seeing the nested loops. Basically we use the nested loops to enter the values in the two-dimensional array. So we were facing some issues like board was getting filled and I was even not trying to explain. So let us look at the only small part of the program. Okay, so we were taking the entire example. So the example itself occupied the space. So we were not having the enough space to understand the entire scenario. So I will today only discuss about the for loops, the main part of the program, that how the nested loop works, how the for loop works. Okay, so I will explain that. Let us start. Okay, so I will also delete this. We might need more space. So let's see our program. The simple thing. So suppose I have an integer array that is basically of so I have taken an array with 2 rows and 3 columns. Okay, मेरा face कट जाता है. Okay, so I write here integer a2. But first we will start with the single dimensional array. For one dimensional array we will try to understand. So I will write only a3 and I will take a variable I. So suppose I have taken an array, one dimensional array. First we will understand one dimensional array, then we will go through the two dimensional array. So I have taken a one dimensional array with 3 elements. Okay, so size is 3 and I have also taken a variable I for the for loop. So basically this will basically create a space in our memory. So when I declare these statements, a box, suppose a space is created in the memory. Listen carefully, okay? This is going to be important if you do not understand. So try to understand this. So when I declare this, so basically here I am declaring an array of size 3. So this will create a space in my memory, okay? In my memory, this space will be created for the array, and when I declare I, an integer, so this space will also be created for I. So basically this is I and this is A. And when I declare at this line, there will be some random values in it, okay? So random values might be anything. Suppose the value might be 5, 1, 2, 3, and here 4, 1, 7, 2, or 9, 3, 6, 1, or 1, 2, 3, 9. So there might be any values. At this point, if I try to print values of I, or if I try to print values of A, so it might print some random values. This thing we have discussed already. Okay, if you have attended all the classes, this thing we have discussed. So basically, this will create a space in the memory, and in memory there might be some random values, any values might be inside that. In the next thing, I will take an array for I is equal to 0, I less than 3, and then plus I. And here I have scanf, %d, ampersand AI. Okay, so basically this is my for loop. Now I am going to delete this. Okay,
So basically this loop will basically enter scan one by one value in the array. So when this line will be executed, keyboard at command prompt you will have to enter some number via keyboard, and that way this is basically called runtime initialization of the array. So suppose this was our array and it had random values. Suppose this was the random values, and when I will run this loop, then it will ask me a value via keyboard. So suppose if I enter a value 5, so this will be filled. Then suppose I enter value 4, this will be filled, and suppose I enter value 2, so this will be filled. So this way a for loop is can. So this way a runtime initialization for one dimensional array works. So this is basically how a for loop. Now we will see that how this for loop actually works. So what it will do, the result जो है वो ये है. जब हम इसको रन कराएंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा. अब हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे for loop पूरा वर्क करता है. So let us see. Or suppose instead of 15, 14, or I suppose these values I enter. Now see, now this for loop, here we can also treat this as a same as, ये जो है same है इसके. अगर मैं यहाँ पर for I equal to 0 करूँ और I less than equal to 2 करूँ और यहाँ पर I plus plus कर दूँ, ठीक है. So ये दोनों same चीज़ है. Basically these two are the same things. So instead of I less than 3, I can write I less than equal to 2. The same thing is this. Okay. It depends what feels you better. अगर आपको ये सही लगता है, ये आसानी से समझ में आ रहा है तो ये सही. प्लस प्लस आई इज सेम एज आई प्लस प्लस इन दिस सिनेरियो. ठीक है. डिफरेंस कब आता है वो अभी हमारे लिए टॉपिक आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा. तो यहाँ पर चाहे आप प्लस प्लस आई लिखो चाहे आई प्लस प्लस लिखो, सेम चीज़ है. तो ये इस लूप की जगह अगर मैं ये भी लिखता हूँ तो ठीक है. जनरली हम वही चीज़ एडॉप्ट करेंगे जैसे हमने आई लेस देन 3 यहाँ लिखा एंड यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 2 लिखा. सो जनरली वी विल डू द सेम थिंग व्हाट एवर रिटन इन द बुक. वी विल प्रिफर दैट. मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ कि हम वो क्यों करेंगे, वाई वी विल डू दैट, बिकॉज that will help in your exams. Okay, so you might adopt anything, but it is better to stick whatever way the book is following. Okay, otherwise it is morally same thing. So suppose this is my for loop and let us see how it works. Suppose this is the line number 1, this is line number 2, this is line number 3. Okay, and suppose this is line number 4. First, second, third, fourth, these are the lines. Let us see how this works. So, सबसे पहले at the first line 1 will be executed, and suppose before that I make a table. So suppose here I have, and here I have A0. And here I have A1 and here I have A2. और यहाँ पर मैं एक स्पेस छोड़ देता हूँ. Okay, so suppose here I have I and here I have line number. So this is our A0, this is A1 and this is A2. So I have written here A0, A1 and A2 and the value of I here, and here I will write some more things. Let us see. And here I have line numbers. So सबसे पहले when this program starts executing, suppose this is the program. I am not talking about the main function. Definitely there will be main also, and hash include stdio.h, then void main. These things I have to write. But okay, I am only talking about this much statement. Okay. So in this statement, suppose I have only these statements. So सबसे पहले जो है line number 1 will be executed.
तो सबसे पहले जो होगा वो सबसे पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट हुआ आपके मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, एक तो आई और एक आपका ये वाला, एक आपका A0, A1 एंड A2, ठीक है। So this space will be created in the memory and there will be some random values इस लाइन 1 पर। So लाइन 1 पर i में क्या वैल्यू होगी, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर भी कोई भी रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, उसे हम रैंडम वैल्यू कहते हैं। तो अगर मैं इस लाइन के बाद प्रिंट करने की कोशिश करूं आई की वैल्यू, तो कोई रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूं तो कोई रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी। नाउ आई मूव टू द लाइन सेकंड, ठीक है। यहाँ पर वी विल आल्सो सी मोर थिंग्स, लेट अस सी। सो दिस आई इज इक्वल टू 0, ओके, दिस आई इज इक्वल टू 0 राइट, विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम, ठीक है, ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। फोर लूप, चाहे फोर लूप कितनी ही बार चले, चाहे 4 बार 5 बार या कितनी ही बार दिस फोर लूप वन, दिस आई इज इक्वल टू 0 विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम, और सबसे पहले एट द फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस विल ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, और स्टार्ट में सबसे पहले स्टार्ट में यही एग्जीक्यूट होगा केवल एक बार। i लेस देन इक्वल टू 3, ये जो कंडीशन है, ये जो है ये कहीं बार भी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और वो कब होगी, एट द फर्स्ट, सबसे पहले, ठीक है, एवरी टाइम, मतलब जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी ही बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एवरी टाइम और स्टार्टिंग में। और ये जो है आपका i प्लस प्लस, ये भी एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा और होगा आपका स्टॉपर या एंड में। This might seems little bit complex at first, but once you understand, it's very easy. Okay, even if you do not understand and you try to make for loops and you make 4-5 programs for for loop, then you will get to know how it works. Okay, तो अगर आप 4-5 प्रोग्राम बना लोगे for loop के, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये थ्योरी जो है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि हाँ भाई एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, अगर आप 4-5 प्रोग्राम बनाएंगे इसके तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। बट स्टिल let us see. So this I is equal to 0 will be executed only one time, और स्टार्टिंग में जब भी for loop हमारा स्टेटमेंट आएगा केवल एक ही बार, ये जितनी भी बार for loop चलेगा, आपको पता है for loop है बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये हर बार एग्जीक्यूट होगा, ये जो कंडीशन है बीच वाली ये हर बार एग्जीक्यूट होगी, और for loop के अंदर जाने से पहले, जितनी बार भी हम अंदर जाएंगे for loop में, उस पर जाने से पहले हर बार ये एग्जीक्यूट होगी, मतलब स्टार्टिंग में। और ये जो है लास्ट वाली कंडीशन है, ये भी हर बार एग्जीक्यूट होगी, और हर बार कब एग्जीक्यूट होगी, व्हेन वी विल कमिंग आउट ऑफ द फोर लूप, जब हम फोर लूप से बाहर आ रहे होंगे तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो यहाँ पर पहले, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन आई रब इट, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो यहां पर जो है जब भी मैं सेकेंड लाइन पर आऊंगा तो मैं लिख देता हूं कि i लेस देन 3। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये जो लाइन है i लेस देन 3, जो बीच की कंडीशन है वो हर बार एग्जीक्यूट होगी, तो इसका मतलब जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये क्लियर है। सो वेन एवर द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, जब भी हम सेकेंड स्टेटमेंट पर आएंगे तो i लेस देन 3 कंडीशन इधर ही है, तो जब भी हम सेकंड स्टेटमेंट पर आएंगे तो ये जो है स्टेटमेंट i लेस देन 3 ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, और जब भी हम यहाँ लास्ट में आएंगे तो i प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। नाउ इट शुड बी क्लियर दैट i इज इक्वल टू 0 विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम एट फर्स्ट, उसके बाद जितनी बार भी ये लूप चलेगा हम सेकेंड लाइन पर आएंगे, जब भी हम पहली बार में सेकेंड लाइन पर आएंगे तो केवल i इज इक्वल टू 0 एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये एग्जीक्यूट हर बार होगा, ये बार बार एग्जीक्यूट होगा और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो हमने i लेस देन 3 इसके साथ में ही लिख दिया कमेंट करके, ये जो बेसिकली दिस इज बेसिकली ए कमेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और प्लस प्लस i जो है लास्ट में आता है, लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, तो हमने यहाँ पर कमेंट करके प्लस प्लस i कर दिया कि जब भी ये फोर्थ लाइन पर आएंगे इसका मतलब हो गया कि प्लस प्लस i जो है वो अब एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है. So whenever I come to line second, I less than 3 will be executed. Whenever I come to line 4, plus I will be executed. Now let us see. So whenever I come to line 1, a space will be created in the memory for array and a variable I, and there will be random values inside them. And suppose random values I denote by slash, okay, hyphen basically. So this is a hyphen or dash. So suppose I represent random values by dash. There will be different values. And this is the line number 1 when line 1 executes. So this will be the values in this array and I. And after that I come to line second. जब लाइन सेकंड पर आऊंगा तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, i इज इक्वल टू 0. i 0 हुआ तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी अब जो है वो 0 हो जाएगी. ठीक है, पहले i में कुछ और वैल्यू थी, रैंडम वैल्यू थी, और अब वो जो है वो 0 हो चुकी है. उसके बाद जो है मैंने कहा कि i लेस देन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड सेकेंड लाइन पर. i 0 है तो बेसिकली आई विल चेक 0 लेस देन 3, और अगर ये 0 लेस देन 3 ट्रू है तो इसका मतलब आई विल गो इनसाइड द फोर लूप. अगर 0 लेस देन ट्रू है दैट मीन्स आई विल गो इनसाइड द फोर लूप. तो अब मैं जो है फोर लूप में आ गया, ये एंड हो गया, ये जो है लास्ट में एग्जीक्यूट होगा लाइन 4 पर. दिस इज ट्रू, दैट मीन्स आई विल गो टू लाइन 3. Because 0 is less than 3, that means I will go to line 3. So now I have entered to the line 3. अब लाइन 3 में क्या बोल रहा है कि एंटर वैल्यू करो, किसकी करो, a ऑफ i. i क्या है यहाँ पर 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एंटर करो. सपोज आई हैव एंटर्ड वैल्यू 15 हियर. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ओवर हो गया. फिर मैं आया लाइन 4 पर. लाइन 4 पर क्या होगा, प्लस प्लस आई. लाइन 4 पर प्लस प्लस आई होगा. i जो है अभी हमारा क्या है, 0 है, अभी 0 ही चल रहा है. यहाँ पर रैंडम वैल्यूज है. ठीक है, यहाँ पर अभी भी रैंडम वैल्यूज है. a0 में 15 आ चुका है, इन दोनों में अभी भी रैंडम वैल्यूज है. i जो है 0 हो चुका है. ठीक है, अब मैं फोर्थ लाइन पर आ गया. जैसे ही फोर्थ लाइन पर आया प्लस प्लस i हुआ, दैट मीन्स i की जो वैल्यू थी वो अब 1 हो गई है. यहाँ पर 15 ही है, यहाँ पर रैंडम वैल्यूज ही है कोई. अब फोर्थ के बाद मैं गया सेकेंड स्टेटमेंट पर. ठीक है, तो फोर्थ के बाद मैं आया सेकेंड लाइन पर. i की वैल्यू 1 ही है. सेकेंड लाइन पर आया, सेकेंड लाइन पर ये वाली कंडीशन चेक होगी. ये कंडीशन क्या है, 1 लेस देन 3. i की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 3. ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है क्योंकि 1 लेस देन 3 है. यहाँ पर अभी भी रैंडम वैल्यूज ही होगी. ठीक है, ये लेस देन ट्रू है, 1 क्योंकि लेस देन ट्रू ये है, तो हम जाएंगे थर्ड लाइन पर. ठीक है, नाउ आई एंटर टू द थर्ड लाइन. थर्ड लाइन पर जैसे ही आया, मेरे को पता है ये सेम ही चीज मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पर पहले. ठीक है, जब भी मैं नेक्स्ट लाइन पर मूव करूंगा तो मैं सेम वैल्यूज कॉपी कर लूंगा और फिर जो नेक्स्ट लाइन जो भी एग्जीक्यूट होगी उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यूज को चेंज कर दूंगा. ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे गया मैंने ऊपर वाली वैल्यूज कॉपी कर ली, और यहाँ पर जैसे ही देखा कि भाई कोई चीज चेंज हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है, सो थर्ड लाइन पर मैं आया, थर्ड स्टेटमेंट थर्ड लाइन पर आया. यहाँ पर जो है a ऑफ i चाहिए, i मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर मैं इस पे आ गया, a ऑफ 1 आ गया. a ऑफ 1 की मैंने वैल्यू सपोज आई हैव एंटर्ड वैल्यू 14. ये हो गया मेरा स्टेटमेंट. अब नाउ आई कम टू लाइन 4. तो लाइन 4 पे मैं आ चुका हूँ. अब यहाँ पर है, सबसे पहले आई हैव कम टू द नेक्स्ट लाइन, तो सारी वैल्यूज कॉपी कर दो. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर है, और यहाँ पर रैंडम वैल्यू है. अब फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होगी तो प्लस प्लस आई होगा. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डू नॉट वरी, जस्ट कम विद मी. समवन इज सेइंग एंड हैज अंडरस्टूड एंड सम सेइंग दैट नॉट एबल टू अंडरस्टूड. सर मल्टीटास्क, सर वीडियो इज फ्रीजिंग. वीडियो फ्रीज कर रहे हैं तो बेटा आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ही है. सर समझ नहीं आया. ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया डू नॉट वरी, आई विल रिपीट अगेन, जस्ट कम विद मी. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे साथ चलिए, कोशिश करिए समझने की, हम दोबारा से आएंगे. ठीक है, सो हम फोर्थ लाइन पर आए यहाँ पर. ठीक है, जैसे ही हम फोर्थ लाइन पर आए हमने सारी वैल्यूज थर्ड लाइन से नीचे कॉपी कर ली. जो भी थर्ड लाइन में वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमने नीचे कॉपी कर ली है. जैसे ही हम फोर्थ लाइन पर आए, फोर्थ लाइन पर हमको पता है प्लस प्लस आई होगा, तो i की जो वैल्यू है 1 है, तो इसका मतलब है 2 हो जाएगी. प्लस प्लस आई मतलब एक इंक्रीमेंट हो गया, तो i की वैल्यू हो गई 2. और तो कुछ है नहीं फोर्थ लाइन में, इसका मतलब ये वैल्यू सेम रहेगी.
उसके बाद फोर्थ लाइन के बाद हम गए फिफ्थ लाइन, सेकेंड लाइन पर अगेन, ठीक है। तो हम उसके बाद गए सेकेंड लाइन पर। अगर मैं इसको एक रिड्यूस कर दूं तो शायद हम स्पेस फिलअप कर सकेंगे। सो ओके, सो आई रिड्यूस माय साइज टू only one 2 dimension. Okay, so I reduce the array size to 2 basically. So you write here only 2. A of 2, I less than 2, okay. Because if I write the third column, then it will go downward and again you will not be able to understand, and it will happen like happened in the last class. So now we only have 2 size of the array 2. And suppose 15 I have entered and 14 I have entered. So अब मैं गया यहाँ पर सेकेंड लाइन पर, सेकेंड लाइन पर गया, सेकेंड लाइन पर ये एग्जीक्यूट होगा नहीं है तो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ये हो चुका है। सेकेंड लाइन पर मुझे पता है ये एग्जीक्यूट होता है i लेस देन 2, तो यहाँ पर मैंने चेक करा मेरा i जो है बेसिकली सेकेंड लाइन पर आया, ये पहले तो सारा मैंने कॉपी कर दिया 15 और 14, दिस आई हैव कॉपीड। अब जो है सेकेंड लाइन पर मैंने कहा कि भाई ये वाला चेक होगा तो 2 लेस देन 2 हो गया। अब ये क्या ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो थर्ड पे नहीं आएगा, और थर्ड पे नहीं आएगा तो आपका जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है अगर मान लो सपोज देयर इज अ फिफ्थ नंबर ऑफ लाइन, तो ये सीधा जो है फिफ्थ लाइन पर आएगा। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन आई अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके, so let's start. So initially we were taking then array of size 3. So now I have taken only array of size 2 because we were having the less space. So I have taken an array of size 2 only. Okay, we only have 10 minutes, so let's understand. So only 2 size array I have taken. Initially there will be some random values. Okay, so let's try to write it again. Okay, so initially so initially the line 1 will be executed. So ये यहाँ पर है कि अगर मैं लाइन 1 पर हूँ तो शुरू में जो है रैंडम वैल्यूज है, जैसे ही लाइन मेरी 1 क्रिएट हुई यहाँ पर मेरे पास रैंडम वैल्यूज है, कुछ भी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर 1 लाइन हो गई है, उसके बाद हमारे पास सेकंड लाइन पर आए हम। सेकंड लाइन पर हमने कहा कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है बीच वाला i लेस देन 2, ठीक है, और जो लास्ट वाला है ये जो एंड जो हमारी लाइन है उस पर जाकर एंड होगा, प्लस प्लस i यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, i लेस देन 2 यहाँ पर होगा, और ये भी यहीं पर ही होगा लेकिन केवल एक ही बार होगा। i इज इक्वल टू 0 विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली 1 टाइम एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट लाइन 2। तो उसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ i इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो है i इज इक्वल टू 0 हो गया। और हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। सो लाइन 1 पर है हम, अब लाइन 2 पर आए, ये हम 2 पर लाइन पर आ गए एंड वी विल कॉपी द सेम वैल्यूज। ठीक है, जो भी लाइन 1 की वैल्यू थी वी विल कॉपी द सेम वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज है कुछ भी, वो हमने यूं क्यों कॉपी कर ली। सेकंड लाइन पर आए, सेकंड लाइन पर i इज इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगा केवल एक बार, तो i इज इक्वल टू 0 हमारा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर अब 0 आ चुका है। फिर उसके बाद i इक्वल टू 0 पर ये वाला चेक एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या बोल रहा है 0 लेस देन 2 है। अब अगर ये ट्रू है 0 लेस देन 2 तो हम लाइन 3 पर जाएंगे, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हम सीधे लाइन 5 पर आ जाएंगे। ठीक है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब हमको इनसाइड जाना है, और अगर ये कंडीशन फॉल हो गई तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं।
और सीधे हम लाइन 5 पर आ जाएंगे जहां पर हमारा ये लूप एंड हो जाएगा। सो सेकेंड लाइन पर हमारा 0 लेस देन 2 एग्जीक्यूट हुआ, ये ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो इसका मतलब थर्ड लाइन पे जाएंगे नीचे। नीचे थर्ड लाइन पर आए, सारी वैल्यूज यूं क्यों कॉपी पेस्ट कर दी हमने ऊपर वाली लाइन से। अब देखो कि थर्ड लाइन में हो क्या रहा है, थर्ड लाइन में हो रहा है कि a ऑफ i की वैल्यू जो है कीबोर्ड से ली जा रही है। तो a ऑफ i क्या है, i हमारा 0 है, तो a ऑफ i मतलब a ऑफ 0, ये वैल्यू कीबोर्ड से। और सपोज आई हैव एंटर्ड 15 वैल्यू हेयर, तो यहाँ पर मेरे पास 15 आ जाएगा। 14 में a ऑफ 0 में 15 आ जाएगा, a ऑफ 1 में अभी भी रैंडम वैल्यू ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि i 0 है तो यहाँ पर a 0 है, a 0 की वैल्यू मैंने एंटर कर दी, a 1 की वैल्यू अभी भी वो की वही है। उसके बाद आई कम टू द लाइन 4 और फिर वापस मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वैल्यूज अपनी, ठीक है। अब लाइन 4 पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस आई हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है, प्लस प्लस आई का मतलब यहाँ पर 1 हो गया। अब मैं वापस सेकेंड लाइन पर आ जाता हूँ, सेकेंड लाइन पर गया तो वापस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहले सेकेंड लाइन पर सारी वैल्यूज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर वही रैंडम वैल्यूज है। अब सेकेंड लाइन पर मैंने देखा i लेस देन 2 एग्जीक्यूट होगा, तो 1 लेस देन 2 एग्जीक्यूट होगा, हाँ ट्रू है, ट्रू है, तो अगेन वी विल मूव टू द लाइन थर्ड। तो हम लाइन थर्ड पर आ गए, थर्ड पर आती वापस सारी वैल्यूज कॉपी पेस्ट कर दो ऊपर से। अब थर्ड पर जो है वैल्यू है i इज इक्वल टू 1 है, हमको चाहिए a ऑफ i, तो a ऑफ 1 हो गया, a ऑफ 1 ये है, इसकी वैल्यू मान लो हमने 14 एंटर कर दी, तो यहाँ पर हमारा पास 14 आ गया। लाइन थर्ड हो गई। उसके बाद हम लाइन 4 पर आए, 4 पर वापस सारी वैल्यू कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद 4 पर प्लस प्लस आई हो है, तो 1 है हमारा पहले से, तो 1 को हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा प्लस प्लस आई होते ही। फिर उसके बाद हम गए वापस सेकेंड लाइन पर, सेकेंड लाइन पर जब हम गए तो हमने फिर चेक करा i लेस देन 2, हमने साइड में लिखा हुआ है, तो 2 लेस देन 2 चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पर सेकेंड लाइन में। तो पहले तो कॉपी पेस्ट कर लो सारी वैल्यूज 2, 15 और 14। जैसे ही फोर्थ लाइन से सेकेंड लाइन पे गए सारी वैल्यूज नीचे कॉपी पेस्ट कर लो। सेकेंड लाइन पर हम आए, सेकेंड लाइन पे हमको ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, ये कंडीशन है i हमारा 2 है, तो 2 लेस देन 2 चेक करो, क्या ये ट्रू है, नहीं ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि 2 2 से छोटा नहीं है, तो हम फिफ्थ लाइन पर आ जाएंगे और ये हमारा जो है फॉर लूप हो गया, ठीक है। दिस इज द हाउ वन डायमेंशनल और एक सिंगल फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है। यही चीज, सेम ही चीज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करेगा। अभी तो हमारा टाइम जो है यहाँ पूरा होने वाला है 4 मिनट के अंदर, एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कवर द nested loop, the second loop inside loop. So this is the one loop, one for loop, and this is way. और वैसे भी अगर हम सेकेंड डायमेंशनल पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट डायमेंशन को अच्छे से समझना आना चाहिए, कि फर्स्ट लूप को समझना आना चाहिए पहले अच्छे से। सो यू गो थ्रू दिस, try to understand this how we have made this table, and then tomorrow in the next class we will be taking the nested loop, लूप इनसाइड लूप। ओके, दो फॉर लूप्स का हम देखेंगे कि एक फॉर लूप के अंदर जब दूसरा फॉर लूप है जो हमारी 2D एरे है बेसिकली, तो वो कैसे वर्क करेगा। इसको पहले अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा कल, आज इसको अगर रिवाइज नहीं करा, तो आपको कल बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो कल जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, जो नेस्टेड लूप है। सर अच्छा था लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। बेटा वीडियो विल बी अपलोडेड होगा सर, वीडियो पे अपलोड हो जाना यार। वीडियो जो है बेटा, आई विल गिव देम द वीडियो, बट व्हेन दे विल अपलोड दैट इज बियॉन्ड माय स्कोप। आई कैन ओनली गिव द वीडियो, बट अपलोडिंग द वीडियो इज देयर टास्क ओनली। ओके, सो वैसे भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यू टेक ए स्क्रीनशॉट, you try to understand, discuss with each other, because I hope that some of you might understand something and some of you will be understand some another thing. तो कुछ आप में ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ चीज़ें समझी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ और चीज़ें समझी होगी। अपने से कोशिश करो, एक दूसरे से डिस्कस करो। वीडियो अपलोड हो जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम देन इन दैट केस। So just go through this, understand this, and in the next class we will be taking the nested loops, loop inside loop. Okay. Or we have only 2 minutes, 2-3 minutes remaining. If you wanted to ask something, let me know. In 2-3 minutes. सर यूट्यूब पे अपलोड होगा ना, बता दिया सर। अच्छा था लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आया।
कोई नहीं बेटा, ये थोड़ा टिपिकल होता ही है, इतना आसान नहीं है ये प्रोग्रामिंग वगैरह। ये बेसिकली फॉर लूप्स वगैरह एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। और इवन इफ यू विल मेक प्रोग्राम, एज आई हैव सेड यू अर्लियर दैट if you will make 4-5 times program 4-5 times using for loops, then you will also get to understand। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ट्राई दिस। और अगर आपका कोई डाउट है, अभी हमारे पास केवल 1 या 2 मिनट रह गए हैं, अगर उसमें आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो लेट मी नो। और कुछ नंबर ऑफ, अच्छा इसमें एक चीज है जो और मैं आपको बताना चाह रहा था। One more thing that I wanted to tell you is that count the 2, how many times 2 has come। यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2 आया, so 2 has come 3 times। और काउंट करो 3 कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स। ये हमेशा ही ट्रू है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो 3 है, 3 line 3 has been executed only 2 times, but line 2 has been executed 3 times, so it will always be true that line 2 will be executed 1 more time than the line 3, ठीक है। so write number of times line 2 executes is equal to number of times line 3 executes plus 1। it will always be true, does not depend on the size of the array। अगर मेरी साइज, एरे की साइज चाहे कितनी भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, it will always be the case, ठीक है। number of times line 2 executes will be equal to number of time line 3 executes plus 1, ठीक है। ये हमेशा होगा चाहे आपकी एरे की साइज कितनी भी क्यों ना हो, ओके। if you will think over it, you will get to know that why it is happening। okay guys, let's see you in the next class। please become prepared। computer technology and programming is the subject you are studying now, IP।